So now one information I want to share with you. Of course, I have not received the complete program. So some exams are going to be conducted from 10th of August. 10 अगस्त से ये एग्जाम्स होने वाले हैं. So you should be mentally prepared yourself. You should mentally prepare yourself about the whatever the exams or tests are being conducted on from 10th of August. So the syllabus of this book, that is fundamental of physical geography, that all the chapters which are in the syllabus that you should go through right now from today onward. अभी से अपने रिवीजन को स्टार्ट कर दो. So you will be getting again same format, that is objective type of questions as well as subjective, that in the form of half yearly they are going to conduct this exam. Okay, well, so yesterday we have just discussed about the some of the chemical weathering and even physical weathering also we have discussed. So in the physical weathering we have discussed about the some factors because of that physical weathering is exercise or activated, that is unloading and expansion. Because of that you should know that dome type exfoliation that is being formed, जो dome shape की होती है, because in that weathering is taking place parallel to ground surface, and this exfoliation, dome type of exfoliation, is that can be seen in the area where curved surface is there. Mostly it is seen in the southern part of our country. Then comes because of temperature there is a expansion and contraction. So in that process that some small and big boulders are being formed. छोटे और बड़े चट्टानें, छोटी और बड़ी जो rocks हैं वो बन जाती हैं, not in dome shape, that is in a normal shape. So this type of formation that is known as exfoliated tores. बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं. So that is because of Kushi is also joined. That is because of expansion, because of temperature. There is a variation in temperature. Sometimes it is more, sometimes it is less. Then comes freezing, thawing and frost wedging. Freezing and thawing, ये क्या होता है? During the winter season in mountainous region, many times practically in our area also we must have seen that some of the cracks we are seeing, or faults we are seeing in the rocks. Then if water is inserted in that and if temperature is quite less, that is freezed in that particular place. वो जो cracks होते हैं उनके अंदर वो पानी जम जाता है, freeze हो जाता है. And you should know that when water freezes, the volume of ice is increased. तो पानी का वॉल्यूम जो होता है, when it is freezing, in the freezing state, that time volume is increased. अब किसी क्रैक में इस आइस और इसकी आइस की वजह से जब वॉल्यूम एक्सटेंड मीन्स ज़्यादा हो जाता है, तो नेचुरली देयर विल बी सम एक्सपेंशन इन द रॉक्स. अब वो आफ्टर सम टाइम यू शुड नो दैट आइस दैट इज गेटिंग मेल्टेड अप. अब वो जो आइस जो उसमें फ्रीज हो जाती है, पानी फ्रीज हो जाता है, तो वो बाद में क्या होता है, लिक्विड बन जाता है. तो दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट, दैट रॉक इज इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, वो सिकुड़ जाती है. सो इन दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ यू कैन से फ्रीजिंग एक्शन, दैट इज डन सम वेदरिंग. जो इससे भी वेदरिंग होती है,
क्योंकि जब कभी ज़्यादा मीन्स एक्सपेंशन होगा एंड समटाइम्स देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द रॉक, तो उस रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं. तो आफ्टर सम टाइम दैट इज वेदरिंग इज बीइंग डन. इसके अलावा क्या होता है, फ्रोस्ट वेजिंग. फ्रोस्ट वेजिंग क्या होता है, जब ये somewhere you will see that छोटी छोटी जो क्रैक्स होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये पानी घुस जाता है. सो दैट इज इन प्लेन लैंग्वेज नोन एज फ्रोस्ट वेजिंग. उन जगह को भर देता है जो पानी, और वो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसमें फ्रीज हो जाता है, फ्रोस्ट जिसको जम जाता है जिसको बोलते हैं. सो दैट एक्शन इज नोन एज फ्रोस्ट वेजिंग. तो उसकी वजह से भी ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, मीन्स उसका जो साइज बढ़ जाता है या फिर उसका सिकुड़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट एक्शन वेदरिंग इज टेकिंग प्लेस. देन उसके बाद आता है सोल्ट वेदरिंग. अब सोल्ट में वेदरिंग जो होती है वो भी वी शुड नो दैट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं, कुछ जो सोल्ट होते हैं दैट वी कैन से हैविंग दैट फीचर टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. जो सोल्ट जो होते हैं एंड विच आर अवेलेबल इन द रॉक्स, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें जो थर्मल एक्शन होता है, मीन्स टेम्परेचर दैट इज समटाइम्स इट इज इंक्रीजिंग एंड समटाइम्स इट इज डिक्रीजिंग. बिकॉज ऑफ दैट जो सोल्ट होता है वो ये जो इसका एक्शन होता है, एंड इवन ये जो सोल्ट का जो एक्सपेंशन जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इवन वाटर ऑल्सो. जो हाइड्रेशन होता है, मीन्स जो सोल्ट के अंदर पानी जब घुस जाता है तो उसमें भी इसमें एक्सपेंशन होता है, एंड इवन उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है. क्रिस्टलाइजेशन में मीन्स जब ये सोल्ट एक्सपेंड होते हैं तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो वो क्रिस्टल्स एक तरह से बिखर जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से देयर इज ए वेदरिंग प्रोसेस that is being done in the salt weathering. So again in the dry area, say for example or desert, in desert area the temperature that is varying from 30 to 50 degree. और ऐसे में कुछ salt होते हैं like some salt we can say that different type of salts are there, जिसमें कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड बेरियम. दीज आर द सोल्ट हैविंग द फीचर टू एक्सपेंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. जिसमें हमारा क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया एंड क्रिस्टलाइजेशन हो गया. तो ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं इन दिस टाइप ऑफ सोल्ट, तो वो कहीं ना कहीं रॉक्स का वेदरिंग करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करके रखते हैं. तो इसमें क्या होता है, देन ग्रेन्स इनसाइड दैट सोल्ट, जो रॉक्स के अंदर जो सोल्ट होते हैं और उनमें जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं, एंड दीज आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर ग्रेन्यूल्स बनते हैं उनके, जो एक तरह से जो मेन रॉक्स होती है वो उसकी टूट फूट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, जो कि सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. देन इस सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो ग्रेन्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. सो पर्टिकुलर ग्रेन्स आर विच आर कंबाइंड टुगेदर बिफोर दैट क्रिस्टलाइजेशन के बाद में जो इनके ग्रेन्स होते हैं वो दीज आर इन ए डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म. और मोस्टली दिस इज हैपनिंग इन डेजर्टेड एरिया, जहाँ ड्राई एरिया होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इन दैट पर्टिकुलर एरिया दिस इज हैपनिंग. सो इसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो चीज़ें बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, लाइक लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, एंड इवन शेल हो गया, नीज हो गया एंड ग्रेनाइट हो गया. ये सारे ऐसे सोल्ट हैं जो रॉक्स के अंदर होते हैं, एंड दीज आर मैनी टाइम्स इजीली ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इनमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, पानी की वजह से एक्सपेंशन होता है, तो ऐसे में डिसइंटीग्रेशन होता है और ये रॉक्स जो हैं ये ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं कि ये जल्दी से
टूटने लगती हैं. So that is the only weathering that is done because of salt weathering. Then third type of weathering, that is biological weathering. अब biological weathering क्या कैसे होती है? That is because of living organism. Living organism, that may be human beings, that may be insects, that may be reptiles, and that may be your vegetation also. ये बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है, यू मस्ट हैव सीन मैनी टाइम्स इन एनी ऑफ द वॉल या फिर इन द रॉक्स ऑल्सो. समवेयर इन माउंटेनियस रीजन यू मस्ट हैव सीन कि इन सम ऑफ द रॉक्स सम ट्रीज आर ग्रोन. अब किसी रॉक्स के बीच में से कोई पेड़ उग जाता है. सो व्हेन द रूट्स आर जस्ट मूविंग अपार्ट, जब बड़ा होता है पेड़ और उसका जो एक्सपेंशन होता है, मीन्स उनकी रूट्स हैं वो ज़्यादा उसमें फैलती हैं. बिकॉज ऑफ दैट अगेन देयर इज ए वेदरिंग प्रोसेस दैट इज वी कैन ऑब्जर्व इन द माउंटेनियस रीजन. जहाँ पर भी पहाड़ होते हैं उनमें जो पेड़ उगते हैं, उन पेड़ों की वजह से यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वहाँ पर जो पत्थर जो है या जो रॉक्स हैं वो ज़्यादा वाइड हो जाती हैं और एक टाइम आएगा वो टूट भी जाती हैं बिकॉज ऑफ मैनी वेजिटेशन एंड मैनी टाइप ऑफ ट्रीज विच आर ग्रोन इन द क्रॉप्स. उसके बाद सम ऑफ द ब्रो क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ होल दैट इज दैट आर मेड बाय सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं लाइक अर्थवर्म, टर्माइट्स जो दीमक होती है. देन रोडेंट्स होते हैं जिनके दांत थोड़े से शार्प होते हैं. ये जो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं? रॉक्स के अंदर अपना घर बना के रखते हैं. And these are they are occupying their place and even they are doing some sort of erosion inside the rocks. तो ये इस टाइप के भी जो अर्थवर्म हो गए, टर्माइट्स जो इसमें दीमक जो होगी, that you must have seen in your houses also कि ये दीवारों में भी दीमक लग जाती है और वहाँ से उनके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकालते रहते हैं. So that sort of you can say weathering is taking place because of this biological organism. Yes, Himanshu is raising his hand. सर रोक में कैसे घर बने? See, somewhere they are finding some place. उसमें छोटी सी भी कोई जगह मिल जाती है that they are starting their action. उसमें एक्शन क्या होता है? बहुत बार देखा होगा कि मैंने यही एग्जांपल दिया है. से फॉर एग्जांपल इन योर वॉल, जो घर की दीवारें होती हैं या इवन कहीं जो हार्ड सॉलिड एरिया है वहाँ पर भी समवेयर यू विल फाइंड दैट कहीं पहले 8-10 साल पहले एक होलो पार्ट जो थोड़ा खड्डा था किसी रॉक में वो कम था और बाद में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. तो these burrows are created by some of these earthworms, termites and even rodents. वो उनको खोद के मीन्स को एक तरह से काट के उनके अंदर कुछ इस टाइप का घर बनाते रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से सम सॉर्ट ऑफ वेदरिंग इज टेकिंग प्लेस. सो दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. फर्स्ट वन इज केमिकल वेदरिंग, सेकंड वन इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एंड थर्ड वन इज biological weathering. These all the weathering very very important. That is your examination point of view. 1 नंबर के भी क्वेश्चन और इसमें 3 नंबर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. देन स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग. नो डाउट इसमें हमने डिस्कस किया है बट स्टिल एज दीज आर द स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग दैट वी शुड डिस्कस. That these are not the process. What we are going to discuss, that is not the process, that is a result. What we have discussed in that exfoliation or exfoliation domes and even exfoliated tores. These are being created with the help of a result, not a process. जो कि अनलोडिंग जो होती है उसमें क्या होता है? एक्सफोलिएशन डोम बनते हैं. These are the special effect of weathering. And second one is that is exfoliated tores. तो बड़े बड़े बोल्डर्स बन जाते हैं, बड़े बड़ी चट्टान बन जाती हैं अलग शेप की. उस टाइप के जो फीचर्स होते हैं, फॉर्मेशन जो होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सफोलिएटेड टोर्स. तो ये एक्सफोलिएटेड टोर्स जो होती हैं ये होती हैं बिकॉज ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उससे एक्सपेंशन होता है, एंड समटाइम्स द टेम्परेचर इज रिड्यूस तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। फैलना और सिकुड़ना जो होता है उसकी वजह से ये जो एक्सपोलेटेड टोर्स बनते हैं, और जो अनलोडिंग होती है जिसमें प्रेशर लगता है, उस प्रेशर की वजह से हम मान सकते हैं एक्सपोलिएशन दैट डोम बनते हैं। सो दीज आर द स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। नाउ कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। और मतलब वेदरिंग से ऐसा क्या होता है जो एक क्वेश्चन के रूप में हम मान सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग और द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच in fact creating a way for another activity। जो वेदरिंग होती है उसकी वजह से और क्या कुछ होता है, that is very important। So first we should know that it is a process of breaking down of rocks into smaller fragments। वेदरिंग क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जिस प्रोसेस से बदला जाता है इन द ब्रेकिंग डाउन सिस्टम ऑफ रॉक्स, तो दैट इज नोन एज वेदरिंग। तो इसमें it is somehow making or preparing a way of formation of even regolith and soils। ये क्या करता है, वेदरिंग जो होती है उसके बाद कुछ ऐसे एक्शन होते हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम मान सकते हैं कि रॉक्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू पीसेस, स्मॉलर पीसेस, देन अगेन it is again converted into the fine particles and finally in the form of silt and sand। जो रॉक्स हैं वो उनके पहले टुकड़े बनते हैं और टुकड़े और बारीक होने के बाद और बारीक टुकड़े बनते हैं, देन फाइनली वो सैंड और फाइन पार्टिकल्स के रूप में बन जाता है। सो दैट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा भी कुछ ऐसी रॉक्स बनती हैं बिकॉज ऑफ दैट वेदरिंग कि कोई सॉलिड रॉक्स होती है, और सॉलिड रॉक्स धीरे धीरे टूट फूट के एक अनवेदर टाइप, व्हाट वी कैन से अनकंसोलिडेटेड जो रॉक्स बन जाती हैं। पहले जो रॉक्स होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ वेदरिंग अब उसमें वेदरिंग हो जाती है तो उसमें टूट फूट होती है, उसके बाद वो थोड़ी सी कमज़ोर रॉक बन जाती है। तो दिस ऑल्सो दैट इज द प्रिपेयरिंग द वे ऑफ this you can say regolith and soil। yes हिमांशु। सर मैं पूछ रहा हूँ फिर मतलब रॉक्स के हिसाब से कन्वर्ट होने में टाइम डिसाइड होता है, मतलब एक ही टाइम होता है सारी रॉक्स का? what do you think in that? you want to decide the time कि 10 साल में ऐसा हो जाना चाहिए और नहीं हो तो फिर हाँ, ये so that is कितने time। साल मतलब? भाई दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रॉक हार्ड है या सॉफ्ट है या मीडियम है। तो वो तो टाइम उस पर डिसाइड होगा कि वहाँ पर कितना फोर्स लगता है, कितना पानी आता है, कितनी हवाएं चलती हैं। सो मैनी फैक्टर्स आर देयर विच डिसाइड दैट टाइम फैक्टर ऑल्सो। इसमें ओके सर। सॉइल फॉर्मेशन में यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट इसमें ये भी एक फैक्टर है कि उसमें टाइम फैक्टर भी है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि उसमें टाइम है, टाइम लगता है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि 5 साल में सॉइल बन जाएगी इस रॉक से, दैट इज़ नॉट देयर। उसमें और भी फैक्टर होते हैं। ओके, तो ये इसके बाद हम मान सकते हैं कि ये क्या करती हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इरोजन के लिए रास्ता तैयार करते हैं। वेदरिंग जो होती है, आफ्टर वेदरिंग वी कैन से देयर इज ए मास मूवमेंट। ये मास मूवमेंट के लिए भी एक तरह से रास्ता तैयार करती है वेदरिंग, क्योंकि अगर वेदरिंग नहीं होगा तो समहाउ मास मूवमेंट जो होगा वो इतने अच्छे से नहीं होगा, लेकिन अगर वेदरिंग हो जाती है तो दैट इज सो इजी टू यू कैन से और फॉर दैट मास मूवमेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो इरोजन, सपोज दैट वेदर्ड मटेरियल जो होता है that is you can say moved in the mass movement, that is from one place to another place, और वो जब मूव करता है तो somehow erosion is taking place। तो ये कहने का मतलब वेदरिंग जो है ये इरोजन को भी अंजाम देती है। so a weathering is also taking place because of erosion is also taking place because of weathering। अगर वेदरिंग नहीं हो तो मास मूवमेंट नहीं होगा, और मास मूवमेंट नहीं होगा या कम होगा
तो हम मान सकते हैं कि इरोजन भी या तो इरोजन नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। सो इसमें हम मान सकते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स की जो फॉर्मेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं वेदरिंग की वजह से होती है। पहले कुछ फॉर्मेशन होती है रॉक्स की, और आफ्टर वेदरिंग दैट फॉर्मेशन इज चेंज इनटू सम अनदर फॉर्म। तो ये सभी भी किस वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ वेदरिंग। Then one another important factor that is coming into the consideration with this weathering, some enrichment activity is taking place. Then what is enrichment? See, many times you must have observed that in some of the rocks weathering is taking place, and after weathering some valuable minerals are being concentrated in that rocks only. और जब वो वेदरिंग नहीं होती है तो वो जो मिनरल्स जो होते थे वो एक्सपोज नहीं होते थे बिफोर द वेदरिंग। अगर कोई बड़ी सी रॉक्स हैं, उन रॉक्स में अगर वेदरिंग नहीं थी तब तक उसमें ये दिखाई नहीं देता था कि इसमें कोई मिनरल है, लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड इवन सम एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ये मिनरल्स अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सपोज नहीं होते थे बिफोर वेदरिंग। So that is also important feature of weathering, that it is exposing these type of valuable minerals. So that system is known as enrichment of the rocks. उसमें enrichment होता है कि जो valuable जो इसमें minerals वाली rocks होती हैं that are being exposed by weathering, जो weathering से पहले नहीं होती थी। Okay, so that is about the significance of weathering. इसकी weathering की significance क्या है कि ये अलग अलग चीज़ें तैयार करती हैं। लेट इट बी इरोजन, लेट इट बी फॉर्मेशन ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल एंड इवन दैट एनरिचमेंट ऑल्सो। ओके, देन कम्स आवर मास मूवमेंट। सो मास मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज मास मूवमेंट एंड व्हाट आर टाइप ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड विच टाइप ऑफ मास मूवमेंट्स आर देयर, रैपिड, स्लो एंड इवन लैंडस्लाइड्स। ये स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। वो किस किस की वजह से ऐसा होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मास मूवमेंट में होता क्या है कि देयर इज ए मूवमेंट ऑफ मास। जो भी वेदर्ड मटेरियल होता है वो अगर कहीं मूव करता है तो वो होता है मास मूवमेंट। लेकिन अब द मेन क्वेश्चन अराइजेज कि हाउ डज इट हैपन। मोस्टली हम ये ज़्यादातर ये जानते हैं कि जो वेदर्ड मटेरियल है जो टूट फूट होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम जियोमॉर्फिक एजेंट्स। हम मोस्टली रफली हम यही मानते हैं कि जो इफ देर इज एनी मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, जो टूट फूट के बाद जो मटेरियल इकट्ठा होता है, या डेब्रीज जिसको बोलते हैं, रॉक डेब्रीज जो बोलते हैं, वो मटेरियल दैट इज बीइंग कैरीड बाय द जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, देन आइस, देन विंड्स, देन करंट्स। मोस्टली ये माना जाता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। दैट mass movement, that is the movement, or you can say transfer of mass of rocks, debris down to the slope under the direct influence of gravity. This is very important factor. जो gravitational force होता है, gravitational जो force होता है, that is being exerted from you can say from the surface towards the center of the earth, or you can say where there is a slope। जो ऊपर से स्लोप में क्या होता है, अपर जो और हाइट से वो स्लोप की तरफ जो मूवमेंट होता है, दैट इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ what we can say geomorphic agents like running water, winds and so many other agents. So this is very very clear you can say concept that mass movement is being done with the help of gravitational force, not by geomorphic agents, what we are thinking or what most of the people are thinking. जो भी ये मूवमेंट होता है, लैंडस्लाइड होती है या फिर जो रॉक्स होती हैं वो मूव करती हैं, ये किसी भी मायने में अगर हम माने तो ये जियोमॉर्फिक जो एजेंट्स होते हैं
उनकी वजह से नहीं होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दैट इज मोस्टली एक्सर्टेड फ्रॉम और इन सम ऑफ द स्लोप्स ओनली। अब अगर स्लोप नहीं हो तो ये मास मूवमेंट यू कैनॉट सी। कहीं पर भी देखो इन प्लेन एरिया, कैन यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ मास मूवमेंट। वो भी जो मास मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, दैट इज इन द स्लोपी एरिया ओनली, इन द माउंटेनियस एरियाज। तो ये जो मूवमेंट होता है मास मूवमेंट, दैट इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट विद द मीन्स ऑफ एयर, वाटर एंड इवन आइस। ये जो डेब्रीज हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो ये मूव करती हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से होती हैं। वन अनदर वी कैन से पॉइंट, वी कैन से दैट these geomorphic agents, they are somehow helping in the mass movement, or in another word we can say that gravitational force is carrying running water, wind, ice, glacier and even waves। ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये इनको रनिंग वाटर को लेके जाता है। हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टैग्नेंट वाटर विच इज देयर इन लेक। अगर किसी लेक में पानी है, डू यू थिंक दैट वाटर इज रनिंग, बिकॉज देयर gravitational force is not being exerted because that area is plain area। और वही अगर लेक कहीं स्लोपी उसमें होती तो पहले तो वो लेक ही नहीं बनती, क्योंकि पानी पूरा पूरा वहाँ से निकल जाता जब तक उसको रोक के नहीं रखते। तो ऐसे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज कैरिंग ऑल दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स, और इन अदर सेंस वी कैन से these geomorphic agents and so many other factors are helping in the mass movement। अब ये बात आती है कि ये जो मास मूवमेंट होता है दैट कैन बी एज आई सेड रैपिड और इवन स्लो। ये रैपिड भी हो सकता है एंड ये स्लो भी होता है। अब ये कब रैपिड होगा कब स्लो होगा, दैट इज अगेन सो मेनी अदर फैक्टर्स आर कमिंग इनटू कंसिडरेशन, कि ये कब स्लो होगा और कब ये फास्ट होगा। और इसका जो मूवमेंट है दैट मूवमेंट इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्रीपिंग फॉर्म मीन्स जैसे बेल होती हैं ऐसे फैल के जाता है, देन इवन फ्लो, ये बह के जाता है। ये दैट मास मूवमेंट जो होता है उसमें जो मटेरियल होता है वो बह के जाता है, एंड इवन समटाइम्स इट इज स्लाइडिंग ऑल्सो, ये खिसकता भी है, एंड समवेयर वी कैन सी दैट इट इज फॉलिंग ऑल्सो। ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ ये गिरता भी है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल ड्यूरिंग द मास मूवमेंट। उसके बाद इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम मान सकते हैं कि जो वेदरिंग जो होती है ये हम मान सकते हैं कि अगर वेदरिंग हम ये माने कि वेदरिंग इज समहाउ डन और वेदरिंग इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मास मूवमेंट, दैट इज टोटली रॉन्ग। जो वेदरिंग जो होती है दैट वी कैन से दैट इज समहाउ हेल्पिंग इन द मास मूवमेंट, बट इफ वी से दैट वेदरिंग इज टोटली डन in this process, that is in the mass movement, that is not you can say correct। So mass movement is being done in the particular condition when the force is exerted on that particular material, that is more than that force which is opposing by that material। Suppose कोई रॉक्स हैं वो अगर मूव करेंगी तो उस कंडीशन में हम उस पे जो अपनी रॉक्स हैं वो रॉक्स जितना रेजिस्टेंस वहाँ अप्लाई करती हैं उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा फोर्स लगेगा, देन ओनली दैट रॉक कैन मूव फ्रॉम दैट प्लेस, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। टेक द एग्जांपल ऑफ वन लोडेड ट्रक। एक लोडेड ट्रक है, उसमें हम अगर पांच आदमी उस पर धक्का लगाएं और वो नहीं हिले, दैट मीन्स कि उस ट्रक ने जो रेजिस्टेंस वहाँ अप्लाई कर रखा है ऑन दैट सरफेस, उस अपोजिशन और उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा फोर्स लगेगा, देन ओनली दैट ट्रक कैन बी मूव्ड। तो ऐसा ही मास मूवमेंट में भी होता है कि मास मूवमेंट जो होता है उसमें जो मटेरियल होता है, उसमें जो डेब्रीज होती है,
वो डेब्रीज अगर जितना रेजिस्टेंस वहाँ अप्लाई होता है उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, देन ओनली दैट मास मूवमेंट विल बी डन, अदरवाइज वो मास मूवमेंट नहीं होगा। और वो मूवमेंट या फिर वो फोर्स कैसे लगता है, वो दैट इज अनदर फैक्टर, कि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मास मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होती हैं, वो उसको हेल्प करती हैं फॉर दैट एक्शन, कि वो मास मूवमेंट जो हो जाए उसके लिए वो कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनको हेल्प करती हैं। फर्स्ट वन इज वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, मतलब जो ऐसी कुछ रॉक्स होती हैं जो बिल्कुल अनकंसोलिडेटेड होती हैं, मतलब वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। अगर ऐसी जगह पे हम माने कि मास मूवमेंट होगा तो दैट विल बी क्वाइट इजी। देन उसके अलावा थिन बेड रॉक्स, अगर रॉक्स जो होते हैं, बेड रॉक्स जो होती हैं, वो अगर पतली हैं तो वो उस पर फोर्स ज़्यादा लग ही जाएगा कहीं ना कहीं पानी से या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उससे, और वो मूव कर जाएंगी, उसमें मूवमेंट्स हो जाएगा। देन कहीं पर फॉल्ट होते हैं, कहीं पर रॉक्स के अंदर क्रैक्स होते हैं, तो उस पोजीशन में मास मूवमेंट वहाँ पर इजी हो जाएगा। देन स्टीपली बेड्स होते हैं, कुछ ऐसे बेड्स होते हैं जहाँ पर उनकी हाइट जो होती है वो एकदम स्टीप होती है और वहाँ पर स्लोप ज़्यादा बनते हैं, तो वहाँ पर भी मास मूवमेंट दैट विल बी क्वाइट इजी। देन वर्टिकल क्लिप्स होती हैं, वर्टिकल क्लिप्स क्या होती हैं, जो कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो पतले पतले टोर्स टाइप के रॉक्स में बन जाते हैं, इस टाइप की पतली पतली जो रॉक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते में खड़ी होती हैं, तो उनको भी वहाँ से मूव करवाना इजी होता है अगर वो थिन होती हैं और वर्टिकल होती हैं। देन अबंडेंट प्रेसिपिटेशन, अगर कहीं पर बारिश ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो देयर ऑल्सो मास मूवमेंट इज क्वाइट ईजी। उसके बाद टोरेंशियल रेनफॉल, जो तेज़ हवाओं के साथ में वायलेंट टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, बिल्कुल तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है, उस एरिया में भी मास मूवमेंट के ज़्यादा चांस होते हैं। देन स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं या क्रॉप्स कम होती हैं, वहाँ पर भी मास मूवमेंट ज़्यादा होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स, these are the so many even activities which are helping in the mass movement. No doubt mass movement जो ज़्यादातर मैं जैसे मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, but these are the activities which are helping in the mass movement for their easiness. तो ये सारी एक टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं मास मूवमेंट को ईजी बनाती हैं, ज़्यादा कहीं पर रैपिड हो जाता है और कहीं पर स्लो हो जाता है। So with this I think time is going to be over, so we should finish this. Yes, Himanshu, anything? नहीं सर। So these are the activities which favor the mass movement. Okay, in this way this question can be asked, what are the activities which favor the mass movement? So these are the different activities. Okay, then time is almost over. Need not to rejoin today. You can leave. Bye for the day. God bless you. बाय सर, थैंक यू। Okay, bye. Thank you, sir.